السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں نازیہ خان اور میں ہوں ماہین سید۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ہیڈ لائنز کا، لیکن اس سے پہلے ایک شارٹ بریک۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر شہریوں کو پانی کی سپلائی یقینی بنانے کے لیے مربوط حکمت عملی تیار، ٹیوب ویلوں پر لگے جنریٹروں کے ڈیزل اخراجات کے 10 کروڑ روپے جاری۔ توانائی بجٹ پالیسی ایوان وزیر اعلیٰ سمیت تمام سرکاری دفاع میں ایئر کنڈیشن کے استعمال پر پابندی کا اصولی فیصلہ۔ کمشنر جواد رفیق ملک کا جنرل بس اسٹینڈ ٹوکر نیازی کو 10 جون تک مکمل کر کے پارک بنانے کا حکم۔ ادھر بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے کے لیے اسٹریٹ سے کرتبہ چوک تک دونوں اطراف میں 5 فٹ اراضی ایکوائر کرنے کا فیصلہ۔ PCA کی صدارت میں ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی کا اجلاس، 3 کمرشل عمارتوں کو نقشے کے مطابق تعمیر کی مشروط اجازت دے دی گئی۔ میاں نواز شریف نے بابا کرکٹ گراؤنڈ اور رواز گارڈن میں حفیظ پاک اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کر دیا۔ میاں نواز شریف نے بلے بازی کے جوہر بھی دکھائے۔ مسلم لیگ نون کے صدر کا آتشزدگی کے شکار فیروز سنت دوبارہ نقصان پر اظہار افسوس کیا۔ سینئر ایکٹمارا گوہر اجاز کا کہنا ہے کہ وفاقی بجٹ میں صنعتکاروں ملازم پیشہ ترقی کو رلی کیا گیا، جبکہ عرفان کیسر شیخ کا کہنا ہے کہ حکومت نے تاثیر دوست بجٹ پیش کیا ہے۔ انتظامیہ کی پھرتیاں، شہری سہولیات ڈپارٹمنٹ نے رواں سال انکم ٹیکس کا آدھا ہدف 1 ہفتے میں پورا کر دیا۔ حکومتی احکامات ہوا میں، شہر کے بیشتر پرائیویٹ اسکول کھلے رہے، محکمہ تعلیم کا کھلنے والے تعلیمی اداروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ محکمہ ایکسائز اور ٹریفک پولیس نے ٹوکن ٹیکس ادا نہ کرنے پر 50 سے زائد گاڑیوں کے کاغذات قبضے میں لے لیے۔ ادھر LDA نے غیر قانونی کمرشلائزیشن پر 16 املاک سیل کر دی۔ شیشہ کیسز کے خلاف احتجاج جاری، 6 کو شوکاز نوٹس، 48 حقے قبضے میں لے لیے گئے۔ ادھر گرہ فروشی پر 46 دکاندار کے چالان، 3 گرفتار، جبکہ 900 لیٹر غیر معیار دودھ کو ضائع کر دیا گیا۔ 2.5 ارب روپے سے زائد کے بل ادا نہ کرنے پر چیف ایگزیکٹو لیسکو شرافت علی سیال نے شہر کے تمام ٹاؤن کی اسٹریٹ لائٹ کے کنیکشن منقطع کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ آباد کے رکھوالے ڈاکٹر سے غیر محفوظ کمپ میں پولیس اہلکار سے نقدی موبائل فون لوٹ لیا گیا۔ گنگارام ہسپتال میں 70 لاکھ روپے کے عطیے سے تعمیر ہونے والے ENT تھیٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ ادھر پیرامیڈیکل اسٹاف کا احتجاج 24ویں روز بھی جاری رہا، علاج معالجہ متاثر۔ کوٹ لکھپت سے شاہدر تک شٹل ٹرین کا کرایہ 15 روپے کر دیا گیا، ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلز نے منظوری دے دی۔ راوی میں آلودہ پانی پھینکنے والی 1274 فیکٹریوں کی فہرست، ہائی کورٹ کے گرین بینچ میں پیش، آلودگی کے خاتمے کے اقدامات سے متعلق تفصیلی رپورٹ طلب۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عمر تابندیہ نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ہائی کورٹ پہنچنے پر پولیس کے 454 دستے نے چیف جسٹس کو سلام دی۔ گورنر کی جھپیاں، وزیر اعلیٰ کی خفیہ، جمہوریت میں برداشت کے دعوے تک ہمارے سیاستدانوں کی تقریروں کا لازم و ملزوم حصہ ہے، لیکن زیر نظر فوٹیج کیا منظر پیش کر رہی ہے، فیصلہ عوام خود کریں۔ ایران سے 2012 میں میٹرو رائس پروسیسنگ لمیٹڈ کا اسٹال پاکستان کے سب سے زیادہ برآمد ہونے والے اعلیٰ کوالٹی کے چاول شہروں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے 7 روپے وقت کا لاہور کے تاریخی مقامات کا دورہ، کنیٹ کالج میں مختلف کالجوں کے طلباء اور طالبات سے خطاب بھی کیا۔ افسانہ نگار سعادت حسن کی 100 سالگرہ پر ان کی فن شخصیت کے حوالے سے صحفہ میں تقریب کا اہتمام۔ بیکن اسکول کے زیر اہتمام سالانہ پرفارمنگ آرٹس ایکسٹرا اور گیمز کا انعقاد، طلباء اور طالبات کی شاندار پرفارمنس۔
पंजाब क्रिकेट लीग के मैच में पंजाब क्लब ने राइजिंग स्टार क्लब को हरा दिया। उधर लॉर्ड्स पार्क में वर्ल्ड क्विज टूर्नामेंट के मुकाबले शुरू हो गए। और महज में मौसम मैच के आइंदा 24 घंटों में मौसम दूसरी का तो आलूद रहने की पेशगोई। शहर का दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर महकमा खजाना ने ट्यूबवेलों पर लगे जनरेटर्स के डीजल अखराजात के लिए 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। फिलहाल पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के अहम दफ्तर में जिला इंतजामिया और तरक्याती इदारों के दिन भर जारी रहने वाले इजलास के बाद वज़ीर-ए-आला को खसूसी ब्रीफिंग दी गई, जिसमें पीने के पानी की दस्तयाबी के हवाले से मुरतब शुदा हिकमत अमली के मुख्तलिफ पहलुओं से इन्हें आगाह किया गया। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी इत्तलात, कमिश्नर और डीसीओ लाहौर, तरक्याती इदारों के सरबराहान और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए हिदायत की कि आवाम को पानी की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए वासा को लाजमी मुलाजमतों के एक्ट के तहत सर्विस फ्राहम करनी चाहिए, ताकि वासा में हंगामी हालात नाफिज किए जाएं और इस ज़िम्मे में नोटिफिकेशन जारी किया जाए। उन्होंने जनरेटर्स के डीजल चोरी होने की शिकायत का नोटिस देते हुए हिदायत की कि 3 रुकनी कमेटी बनाकर वासा के सब डिविजनल ऑफिसर के दफ्तर में खसूसी सेल कायम किया जाए। पंजाब ने ऐवान वज़ीर-ए-आला, वुज़रा दफातर समेत तमाम सरकारी दफातर में एयर कंडीशन के इस्तेमाल पर पाबंदी का असूली फैसला किया है। ऐलान जल्द किया जाएगा। ज़रा के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने बिजली की लोड शेडिंग कम करने और आवाम को बिजली की मुसलसल फराहमी के लिए फैसला किया है। सरकारी दफातर में दफ्तरी औकात में एयर कंडीशन के इस्तेमाल की वजह से बिजली बहुत ज्यादा खर्च हो रही है, जिससे हुकूमती अखराजात में भी इजाफा हो रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी को सरकारी दफातर में एयर कंडीशन का इस्तेमाल कम करने के लिए जामे प्लान तैयार करने की हिदायत की है। एयर कंडीशन पर पाबंदी का इतलाक ऐवान वज़ीर-ए-आला और वुज़रा समेत तमाम सरकारी दफातर पर होगा। कमिश्नर लाहौर डिवीजन जवाद रफीक मलिक ने जनरल बस स्टैंड ठोकर न्याज बे को 10 जून तक मुकम्मल करके फाल बनाने का हुक्म दे दिया है। कमिश्नर ऑफिस में होने वाले इजलास में डीसीओ लाहौर नूरुल अमीन मेंगल, ईडीओ वर्क्स एंड सर्विसेज, सीटीओ लाहौर, एसपी हेडक्वार्टर ट्रैफिक सैयद अमीन बुखारी, एसी सिटी, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड और सेक्रेटरी DRTA के अलावा दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास की सदारत करते हुए कमिश्नर जवाद रफीक ने अफसरान को हिदायत की कि नए तामीर किए जाने वाले बस स्टैंड में सवारियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फ्राहम की जाएं। बिजली के मुतबादिल इंतजामात, बैठने के लिए हवादार इंतजार गाहें, ठंडे पानी की फराहमी, कैंटीन, टेक्स्ट शॉप्स, बेहतरीन सिवेज और 24 घंटे बिजली की फराहमी के इंतजामात 10 जून तक मुकम्मल कर लिए जाएं। इजलास में फैसला किया गया कि मुसाफिरों की सहूलियात के लिए जनरल बस स्टैंड बादामी बाग और जनरल बस स्टैंड ठोकर न्याज बेग में ऐसा शेड्यूल मुरतब किया जाए कि दोनों स्टैंड से मुख्तलिफ शहरियों को जाने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना न करना पड़े और वो बासानी गाड़ियों पर सवार हो सकें। डीसीओ लाहौर का कहना है कि मुल्तान रोड पर बिल्डिंग अथॉरिटी का कंट्रोल जिलाई गवर्नमेंट के पास होगा। जिलाई गवर्नमेंट कंट्रोल दे सकता है तो वापस भी ले सकता है। टाउन हॉल में हाई लेवल डिजाइन कमेटी का इजलास डीसीओ लाहौर नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत। इजलास में ईडीओ म्यूनिसिपल सर्विस महमूद मसूद तमन्ना, डीओ प्लानिंग उम्मे लैला, ईडीओ वर्क्स जावेद अफसल, LDA और पुलिस के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में 6 केसेस पेश किए गए। डीसीओ लाहौर ने चौकवा बिल्डिंग की तामीर की इजाजत पार्किंग के लिए मजीद एक बेसमेंट की तामीर से मशरूत कर दी है। डीसीओ लाहौर ने वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी कर दी हैं कि प्लाजों में पार्किंग का वसी निजाम बनाया जाए, तभी तामीर की इजाजत दी जाएगी। डीसीओ लाहौर ने 2 केसेस को पार्किंग की बढ़ाने की शर्त पर मशरूत इजाजत दी। डीसीओ ने LDA के नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्तान रोड पर बिल्डिंग अथॉरिटी का कंट्रोल जिले गवर्नमेंट के पास होगा और जिले गवर्नमेंट अगर कंट्रोल दे सकती है तो वापस भी ले सकती है। जिला इंतजामिया की फुर्तियां शहरी सहूलियात डिपार्टमेंट ने रवां साल का इनकम टैक्स का अहदाफ आधे हफ्ते में ही पूरा कर लिया। साल 2011 और 2012 में लाहौर के पार्किंग स्टैंड का इनकम टैक्स 32 लाख रुपए बनता है। रवां साल इस मद में 1 रुपया भी इकट्ठा नहीं किया गया था। डीओ शहरी सहूलियात उस्मा 1 हफ्ता कबल टैक्स की रिकवरी शुरू की और 15.5 लाख रुपए की रिकवरी कर ली है। बात रहे कि कुछ रोज कबल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2009 से 2011 तक का इनकम टैक्स न जमा कराने पर शहरी सहूलियात का अकाउंट मुंजमद कर दिया और 2 करोड़ 20 लाख रुपए निकाल लिए थे।
साबिक पीओस ने टैक्स की अदायगी में तोक़ात बरतने पर टैक्स की रकम बढ़ाई थी और शहरी सहूलियात 2 करोड़ 20 लाख अनादे हिंदा हो गया। डीओ शहरी सहूलियात उस्मान ने रिकवरी की मुहिम शुरू की हुई है और ठेकेदारों से रिकवरी का सिलसिला जारी है। रिकॉर्ड मुद्दत में 15.5 लाख रुपए इकट्ठे किए गए हैं। सरकारी स्कूलों ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के 1 जून से गर्मियों के तातीलात के अहकामात हवा में उड़ा दिए। फिजा नूर की रिपोर्ट। गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफे के पेश नजर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 1 जून से तातीलात का नोटिफिकेशन जारी किया था, जबकि ईडीओ एजुकेशन परवेज अख्तर ने कहा था कि जो भी स्कूल खिलाफवर्जी करेगा इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मगर इलामा इकबाल टाउन, समनाबाद, शादमान, फरदोस मार्केट, शाहजमाल और सब्जाजार में तालीमी सरगर्मियां जारी रहीं। इसी तरह दी एजुकेटर्स, अलकादर कैंपस शादमान, यूनिक स्कूल सिस्टम, लिटिल फ्लावर स्कूल फरदोस मार्केट, यूसुफ स्कूल सिस्टम शाहजमाल कैंपस, दी एजुकेटर स्कूल समनाबाद कैंपस, हेवन पब्लिक स्कूल समनाबाद, ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल, एमक्यू फाउंडेशन शादमान, दारे अरकम, क्रिसेंट किड्स कैंपस, लाहौर लाइसियम, एक्यूट एलाइड स्कूल व दीगर में भी तदरीसी अमल जारी है। बाज़ तालीमी अदारों की इंतजामिया का कहना है कि इन्हें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिला, वो 15 जून से तातीलात करेंगे। वालिदैन और बच्चों का कहना है कि मौसम बच्चों पर यकसा असरअंदाज होता है, वो सरकारी स्कूलों में जेर तलीम हो या प्राइवेट में। हुकूमत सरकारी के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों को बंद कराने के लिए इकदाम भी करे। मेरी 2 बेटियां इधर पढ़ती हैं, ये 2-3-4 दिनों में जो गर्मी का हाल है इसमें छुट्टी होनी चाहिए। गर्मी इतनी शदीद है कि बच्चे बेहोश भी हो रहे हैं। कल 3 बच्चे बेहोश हो गए हैं। इनको क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टियां हुई हैं, तो ये कह रहे हैं जी हमने 15 तारीख से पहले छुट्टियां नहीं देनी है आपको। हुकूमत को बहरहाल अपने ऐलान पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दामात की जरूरत है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर यासर अराफात के हमरा फिजा नूर, सिटी 42। महकमा तालीम ने मौसम गर्मा की तातीलात के नोटिफिकेशन के बावजूद खुलने वाले निजी तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। एडीओ एजुकेशन परवेज अख्तर खान के मुताबिक महकमा तालीम ने लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि खुलने वाले निजी इदारों को हफ्ते के रोज शोकाज नोटिस जारी कर दिया जाएगा। एडीओ एजुकेशन के मुताबिक मौसम गर्मा की तातीलात के नोटिफिकेशन के बावजूद खुले रहने वाले निजी तालीमी इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एडीओ एजुकेशन के मुताबिक वालिदैन और तलबा तालिबात की तरफ से मौसूल होने वाली शिकायत की भी जांच पड़ताल की जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हाईकोर्ट के 41वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खान खोसा ने चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब हाईकोर्ट के जजेस और वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं मलिक अशरफ खोकर की इस रिपोर्ट में। गवर्नर हाउस में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर अता बंदयाल की हलफबरदारी तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के हमरा पहुंचे तो कौमी तराना बजाया गया। जिसके बाद गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर अता बंदयाल से हल्फ लिया। I will abide by the code of conduct. I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. issued by the Supreme Judicial Council. तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ, स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल, सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर इत्तेजाज अहसन और सेनेटर परवेज रशीद ने शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस नासिर सईद शेख, जस्टिस शेख नजमुल हसन, जस्टिस मंजूर अहमद मलक, जस्टिस सरदार तर्क मसूद, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस खालिद महमूद खान, जस्टिस शाद अमीर डार, जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक, जस्टिस फरह इरफान खान, जस्टिस मोहम्मद कासम खान, जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मदर इकबाल सिद्धू, जस्टिस महमूद मकबूल बाजवा, जस्टिस सैयद काजम रजा शमसी, जस्टिस अबादुर रहमान लोधी, जस्टिस शिजात अली खान, जस्टिस शाद वहीद और जस्टिस आयशा मलक भी हलफबरदारी की तकरीब में मौजूद थी। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट शेर नासर, एडवोकेट जनरल पंजाब अशतर उसाफ अली, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सदाकत अली, एडिशनल अटॉर्नी जनरल सैयद अब्दुल हाई गिलानी, हाई कोर्ट बार के सदर शहराम सरवर चौधरी, नायब सदर हाई कोर्ट बार हफीजुर रहमान चौधरी, लाहौर बार के सदर जुल्फकार अली और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुजाहिद मुस्तकीम, सेशन जज जावेद रशीद महबूबी, MIT हाई कोर्ट अब्दुल सत्तार, खकान बाबर, हाई कोर्ट के जुडिशल ऑफिसर और वकला की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी। हलफबरदारी के बाद साथी जजेस और तकरीब के शुरका ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मुबारकबाद दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जब हाई कोर्ट पहुंचे तो पुलिस के चाको चुबान दस्ते ने उन्हें सलामी दी। चीफ जस्टिस ने जजेस लाउंज में साथी जजेस के साथ मुलाकात की
जजेज ने उन्हें मुबारकबाद दी और उनके साथ ग्रुप फोटो भी बनवाया। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को इंसाफ की फराहमी के लिए बहुत से चैलेंजेस का सामना है, लेकिन साइलिन और वकला पर उम्मीद हैं कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तमाम चैलेंजेस के बावजूद फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए इनकलाबी इकदाम करेंगे। कैमरा टीम के साथ मलिक मोहम्मद अशरफ खोकर, सिटी 42, लाहौर हाई कोर्ट। पाकिस्तान की सियासत में रवादारी और बर्दाश्त का अंसर रोज बरोज कम होता जा रहा है। इसका अमली सबूत उस वक्त देखने में आया जब वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गले मिलने के ख्वाहिशमंद गवर्नर सदाल लतीफ खोसा को 2 बार की कोशिश के बावजूद करीब न आने दिया और सिर्फ मुसाफिर तक ही महदूद रखा। तकरीब थी नए चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट उमर अता बंदयाल की हल्फबर्दारी से कबल गवर्नर पंजाब सदाल लतीफ खोसा ने इंतहाई पुरतपाक अंदाज में जस्टिस उमर अता बंदयाल, सेनेटर जुल्फकार खान खोसा, सेनेटर परवेज रशीद, स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल और सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह से मुलाकात किया। लेकिन जब बारी आई वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से शर्फ़े मुलाकात की तो खादिम आला ने मौसूफ गवर्नर को 2 बार की कोशिश के बावजूद करीब न लगने दिया और उन्हें फीकी मुस्कुराहट के साथ सिर्फ मुसाफिर तक ही महदूद रखा। जमहूरियत में रवादारी और बर्दाश्त के दावे तक हमारे सियासतदानों की तकरीरों का लाजिम और मलजूम हिस्सा हैं, लेकिन जेर नजर फुटेज क्या मंजर पेश कर रही है, फैसला अवाम खुद करें। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 1 माह के अंदर बाबा ग्राउंड में तमाम सहूलतें मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर मियां नवाज शरीफ ने इस्लामपुरा में वाक़े बाबा ग्राउंड का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली राना मशहूद अहमद खान, रुकन कौमी असम्बली बिलाल यासीन, रुकन सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर, अजासिम शरीफ और मलिक बुरकान भी उनके हमरा थे। TCO लाहौर, कमिश्नर लाहौर और DG स्पोर्ट्स उस्मान अनवर समेत दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। मियां नवाज शरीफ ने डिप्टी स्पीकर राना मशहूद अहमद खान की गेंद पर शॉट खेलकर बाबा ग्राउंड में क्रिकेट का बाकायदा इफ्तिताह किया। मियां नवाज शरीफ ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि 1 माह के अंदर मज़कूर ग्राउंड में तमाम सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। गंगाराम अस्पताल में 70 लाख रुपए के अतिये से तामीर होने वाली ENT थिएटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रक्षंदा तैयब का कहना है कि थिएटर को नाक, कान और गले के ऑपरेशन की जदीद सहूलतों से आरास्ता किया गया है। गंगाराम अस्पताल में ENT के शोबे में थिएटर की अपग्रेडेशन और तामीर के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है। ENT थिएटर की तामीर पर 70 लाख रुपए लागत आई है, जिसमें 19 लाख रुपए सिविल वर्क्स पर खर्च किए गए हैं, जबकि 51 लाख रुपए के आलात खरीदे गए हैं। प्रिंसिपल फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज और गंगाराम अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर रक्षंदा तैयब ने थिएटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर MS डॉक्टर एजाज शेख, प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर समीम मुमताज, प्रोफेसर तलत नाहिद, डॉक्टर समी हुसैन, डॉक्टर बासिर, डॉक्टर अंजुम जमाल और डॉक्टर मसूद अख्तर शेख भी उनके हमरा थे। काना में डाकू पुलिस एहलकार से हजारों रुपए की नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल इशफाक ड्यूटी खत्म करके घर वापस जा रहा था कि थाना काहना की हदूद में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू ने इससे हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया। पुलिस ने कांस्टेबल की दरखास्त पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। LDA ने मंजूर शुदा कमर्शियल रोड पर गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन मेन रोड गुलशन रावी पर 15 प्रॉपर्टीज जबकि नक्शे में रद्दोबदल पर अलामा इकबाल टाउन में 1 इमारत सील कर दी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबाए कमर्शलाइजेशन ने मेन रोड गुलशन रावी पर कमर्शलाइजेशन की खिलाफ वर्जी पर 7 स्कूल समेत मजमूई तौर पर 8 प्रॉपर्टीज को सील कर दिया है। सील की जाने वाली प्रॉपर्टीज में 2 ब्रांचेस अमेरिकन लाइफस्टाइल स्कूल सिस्टम, 2 ब्रांचेस दारे अरकम स्कूल और नेशनल एजुकेशन स्कूल सिस्टम की इमारत शामिल हैं। LDA ने गुलशन रावी मेन रोड पर सर्विस स्टोर समेत मुख्तलिफ नौयत की 7 गैर कानूनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज को भी सील कर दिया है। उधर LDA के शोबा टाउन प्लानिंग ने 3 कश्मीर ब्लॉक अलामा इकबाल रोड को भी बिला इजाजत नक्शे में रद्दोबदल करने पर सील कर दिया है। इचरा से करतबा चौक बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे के लिए पंजाब हुकूमत कैंपट्रेल और अफसरान की रिहायशी कॉलोनी से 5 फीट अराजी हासिल करेगी। अराजी के लिए अलबरा कंपनी मार्केट रेट पर रकम अदा करेगी और नए सिरे से जेल की दीवार तामीर करेगी।
बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे की कामयाबी के लिए इचरा से करतबा चौक तक 5 फीट जमीन हासिल करेगी। कैंप जेल और जेल अफसरान की रिहायशी कॉलोनी से सबसे ज्यादा जमीन ली जाएगी। इस हवाले से हुकूमत पंजाब की तरफ से महकमे जेल खानाजात को अहकामात मौसूल हो गए हैं। जेल हुकाम को बताया गया है कि कैंप जेल और रिहायशी कॉलोनी से 5 फीट जमीन एक्वायर की जाएगी, जिसके लिए अलबराक कंपनी मार्केट रेट के मुताबिक रकम अदा करेगी, जबकि जेल की बैरूनी दीवार भी नए सिरे से 10 फीट ऊंची तामीर की जाएगी। मुसाफिर कम डीजल का खर्च दुगना। पहले ही खसारे में चलने वाली शटल ट्रेन का रूट मजीद तब्दील कर दिया गया। मजीद जानते हैं इस बारे में जुनैद रियाज की इस रिपोर्ट में। लाहौर से शादरा तक चलने वाली शटल ट्रेन पर रोजाना 50,000 रुपए से जायद का ईंधन खर्च होता था, जबकि इस रूट पर मुसाफिर भी न होने के बराबर थे। अब रेलवे हुकाम ने खसारे में चलने वाली ट्रेन का फासला बढ़ाते हुए शटल सर्विस को शादरा से कोट लखपत तक कर दिया है। अब ये ट्रेन शादरा से कोट लखपत के रोजाना 10 चक्कर लगाया करेगी और इसका किराया 15 रुपए होगा। ट्रेन में 350 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है। ट्रेन शादरा से कोट लखपत तक तमाम स्टेशन पर रुका करेगी। मुसाफिरों ने मुतालबा किया है कि शटल सर्विस को रायवंड तक चलाया जाए। बहुत अच्छा इन्होंने किया है जनाब। लाहौर कैंट, लाहौर लखपत तो बड़ी सवारी चढ़ दी है। अब इनको अकल आई है पाकिस्तान रेलवे वालों को, इन्होंने शादरा से अब कोट लखपत कर दिया है। अब इंशाल्लाह ताला ये कामयाब हो। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट लाहौर जवेद अनवर ने बताया कि शटल ट्रेन को कोट लखपत तक खसारा कम करने के लिए नहीं बल्कि शहरियों की सहूलत के लिए चलाया गया है। लोगों को कम फासले पर भी जाने के लिए ट्रेन अवेलेबल हो और जल्दी वो पहुंच जाएं और सस्ता सफर उनको। सूबाई दारुल हुकूमत की आबादी में इजाफे के साथ साथ ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी नाकाफी होती जा रही है। शादरा रेलवे स्टेशन से कोट लखपत तक चलाई जाने वाली शटल ट्रेन सर्विस से शहरियों को काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ जुनैद रियाज, सिटी 42। लाहौर ऐवान सनत और तिजारत ने वफाकी बजट 2012 और 13 को सनत और कारोबार दोस्त बजट करार देते हुए वफाकी वज़ीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को मुबारकबाद पेश की है। लाहौर चैम्बर में वज़ीर खजाना की वफाकी बजट तकरीर के फौरन बाद लाहौर चैम्बर के सदर इरफान कैसर शेख ने सीनियर नायब सदर काशिफ यूनुस मेहर, नायब सदर सईदा नजर, साबिक सदूर मियां अंजुम निसार, शाहिद हसन शेख, मोहम्मद अली मियां, मियां मुजफ्फर अली, साबिक सीनियर नायब सदूर सुहेल लाशारी, शेख मोहम्मद अरशद, सरदार उस्मान गनी और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शुरका ने कहा कि टर्नओवर टैक्स में कमी, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड की मद में 10 अरब रुपए मुख्तस करने, टैक्स छूट की हद 3.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख करने, बैंकों से रकम निकलवाने की हद में इजाफा, कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स कम करने और बरामदात पर टैक्स की शरह कम करने समेत लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की दीगर तजावीज को वफाकी बजट का हिस्सा बनाने पर वफाकी वज़ीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख के मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इरफान कैसर शेख ने कहा कि कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स और एक्सपोर्ट पर टैक्स में कमी से कारोबारी शोबे को फरोग हासिल होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से रोजगार 1 लाख नए मौके पैदा करने का ऐलान कुशाइन है। सोलर ट्यूबवेलों पर सब्सिडी से ज़राई शोबा मुस्तहकम होगा और तवानाई के मुतबादिल ज़राए को फरोग हासिल होगा। उन्होंने कहा कि 28 फार्मास्यूटिकल आइटम्स पर ड्यूटी का खात्मा अच्छा कदम है, जबकि सेल्स टैक्स की यकसा शरह का नफाज मुईशत को तक़वियत देगा। लाहौर चैम्बर के सदर ने कहा कि टैक्स स्लैब की शरह 17 से कम करके 5 करना अच्छा इकदाम है। उन्होंने कहा कि सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में कमी से तामीराती शोबे की हौसला अफजाई होगी। मजीद तरह लाहौर चैम्बर के सदर ने कहा कि कारोबारी बरादरी नए डैमों की तामीर के मुतालिक इसी ऐलान की तवक्को कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि न तो नए हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया और न ही कोयले के ज़खायर से इस्तेफादा करने के लिए कोई हिकमत अमली पेश की गई है। जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने स्पीच की वो तो कुछ पॉजिटिव ही नजर आ रही है। तो बहुत सारे रिलीफ उन्होंने दिए हैं। टर्नओवर टैक्स जो है वो 1% से आधा % किया गया है। सेल टैक्स की स्लैब को रिड्यूस किया गया है। इनकम टैक्स के थ्रेशोल्ड को इम्प्रूव किया गया है। सो ये और इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो पॉजिटिव हैं। TNS वीकेंड हाउस स्कूल के ज़रिए तमाम सालाना परफॉर्मिंग आर्ट्स एक्स्ट्रावागेंजा का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस देकर हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। अलहमरा हॉल नंबर 1 में होने वाली तकरीब में CEO कासिम कसूरी, प्रिंसिपल कार्डियो रनर डिप्टी हेड आयशा कसूरी समेत तलबा और तालिबात और वालिदैन की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर नन्हे तलबा और तालिबात ने बच्चों की मुख्तलिफ नज़मों पर शानदार परफॉर्मेंस देकर हाज़रीन को दाद देने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद नर्सरी
नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक के तलबा और तालिबात ने मशरकी और मगरबी रक्श पेश किया, जबकि खूबसूरत गीतों के सुर भी बिखेरे। तकरीब में तलबा और तालिबात ने मुख्तसर मज़ाहिया खाके पेश करके हाज़रीन को लोटपोट कर दिया। सिटी 42 से बातचीत करते हुए स्कूल की डिप्टी हेड आयशा कसूरी ने बताया कि फेस्टिवल को कामयाब बनाने के लिए इंतजामिया समेत तलबा और तालिबात ने बहुत मेहनत की है। उन्होंने बताया कि इस फेस्टिवल का मकसद तलबा और तालिबात को मौसीकी, अदाकारी और रक्स से आशनाई देना है, ताकि वो तालीम के साथ साथ फनून लतीफ़ा में भी बेहतरीन कारकर्दगी अदा कर सकें। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने वफाकी बजट 2012-13 को मतवाजी बजट करार देते हुए टर्नओवर टैक्स की शरह को निस्फ करने को खुशाइन करार दिया है। इफ्तिमा हाउस में ग्रुप लीडर गौहर एजाज, सेठ अकबर, शहजाद अली खान और शाहिद अब्दुल्ला, जबकि पेशावर से वीडियो लिंक के जरिए मरकजी चेयरमैन इफ्तिमा मोहसिन अजीज ने बजट तकरीर सुनी। वफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए गौहर एजाज ने कहा कि टर्नओवर टैक्स की शरह को 5% तक करना सनतों के लिए सबसे बड़ा रिलीफ है। तनख्वाहदार तबके की सालाना आमदन पर टैक्स की छूट बढ़ाने और कैपिटल मार्केट्स के लिए रिलीफ का ऐलान करना भी खुशाइन है। उन्होंने कहा कि बैंकों से कैश निकलवाने पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में भी रियायत दी गई है, जिसे सराहते हैं। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह को मजीद कम किया जाना चाहिए था। गौहर एजाज का कहना था कि हुकूमत को सरमायाकारी के फरोग के लिए मजबूत पॉलिसी का ऐलान करना चाहिए था और टारगेट सब्सिडी देनी चाहिए थी। वज़ीर आला पंजाब ने मीनार पाकिस्तान के अहाते में एहतजाजी कैंप लगा दिया। मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम को बिजली की बिला तातुल फराहमी तक एहतजाजी कैंप लगा रहेगा। वज़ीर आला की जानिब से दफ्तरी अमूर भी इसी कैंप में सरअंजाम दिए जाने लगे। अहवाल बता रही हैं इमरान यूनुस। लोड शेडिंग के जिन के खिलाफ जहां अवाम सड़कों पर निकली हुई है, वहीं पंजाब की हुक्मरान जमात भी एहतजाज की इस लहर में शामिल हो गई है। वज़ीर आला ने मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में एहतजाजी कैंप लगा लिया है। एहतजाजी कैंप के पहले रोज ही कैंप में वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह, सीनियर मुशीर बराए वज़ीर आला ज़ुल्फ़िकार अली खोसा, सेनेटर परवेज रशीद, सेक्रेटरी टू सीएम नदीम हसन आसिफ, कमिश्नर जवाद रफीक मलिक, DGLD आद खान चीमा, अरकान कौमी असम्बली मियां मरगूब, बिलाल यासीन, मलिक परवेज, नसीर भुट्टा और अरकान पंजाब असम्बली आजासम शरीफ, असद अशरफ, हाजी अल्लाह रखा, चौधरी शहबाज, ख्वाजा इमरान नजीर, आरफा खालिद, राना इकबाल समेत सेक्रेटरी साहिबान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि लोड शेडिंग के बायस अवाम की नींदें हराम हो चुकी हैं, मईशत का पहिया जाम है। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि वो इस एहतजाजी कैंप में रोजाना दफ्तरी अमूर सरअंजाम देंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने हाथ जोड़कर अवाम से अपील की कि एहतजाज के दौरान इमलाक को नुकसान ना पहुँचाएं। खुदा के लिए सरकारी इमलाक को ना आप, ये आपकी इमलाक हैं। मैं हर हद पार करूंगा इंशाअल्लाह अपने अवाम के साथ, अपने टीचर, नर्स, बेवा, यतीम, मजदूर और सरमायाकार, मैं उनके साथ हूँ। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि तमाम सूबों को यकसा वसाइल फराहम किए जाएं। अगर आज ही शाम को पूरे पाकिस्तान में यकसा जो है वो लोड शेडिंग हो जाए तो हम तो को प्रोटेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। मीनार पाकिस्तान में एक ऐसा वक्त भी आया जब पंजाब हुकूमत का एहतजाजी कैंप तेज हवाओं का जोर बर्दाश्त न कर सका और उखड़ गया। वज़ीर आला पंजाब ने मीनार पाकिस्तान के अहाते में मुस्तकिल एहतजाजी कैंप लगाने के साथ तवानाई बहरान के खात्मे के लिए हर हद पार करने का ऐलान भी कर दिया है। कैमरा टीम के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42 मीनार पाकिस्तान। पेंशन अदायगी के अमल में शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए नेशनल बैंक सदर बाजार कैंट में 4 काउंटर्स बनाए गए। पेंशन अदायगी का अमल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। नेशनल बैंक सदर बाजार कैंट में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी के हवाले से मुनासिब इकदाम किए। बैंक में बैठने के लिए मुनासिब जगह, पंखों और ठंडे पानी का भी इंतजाम किया गया। बुजुर्ग शहरियों को सहूलत देने के लिए 4 काउंटर्स बनाए गए, जिससे उन्हें बगैर किसी इंतजार के पेंशन की अदायगी की गई। बुजुर्ग शहरियों ने कहा कि अगर हर बैंक में ऐसे इंतजाम किए जाएं तो वो बआसानी पेंशन वसूल कर सकते हैं। बैंक अमला आइंदा भी ऐसे इकदाम को यकीनी बनाए ताकि शहरियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। बैंक मैनेजर राजा जफर का कहना है कि बुजुर्ग शहरियों को बआसानी पेंशन की फराहमी के लिए बैंक अमले ने हर मुमकिन इकदाम किए हैं, जिससे हर पेंशनर मुतमईन दिखाई देता है। उन्होंने मजीद कहा कि बैंक अपनी रवायत को आइंदा भी बरकरार रखेगा। पेंशन की अदायगी सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शराफत अली सियाल ने 2.5 अरब रुपए से जायद के बिल अदा न करने पर शहर के तमाम टाउन्स की स्ट्रीट लाइट से कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकाम जारी कर दिए हैं।
शहर में टीएमए शालामार टाउन की जानिब से 72 करोड़ 30 लाख रुपए, टीएमए रावी टाउन 45 करोड़ 40 लाख रुपए, टीएमए दातागंज बख्श टाउन 40 करोड़, जबकि टीएमए अलामा इकबाल टाउन की जानिब से 33 करोड़ रुपए का बिल वाजिब अदा है। दूसरी जानिब टीएमए समनाबाद की तरफ से 26 करोड़ रुपए, टीएमए गुलबर्ग टाउन 25 करोड़ रुपए, टीएमए वाघा टाउन 15 करोड़ रुपए, जबकि टीएमए निश्चर टाउन की तरफ 11 करोड़ रुपए का बिल वाजिब अदा है। लेस्को की जानिब से मुतल्लिका टाउन्स को मुतअद्दिद बार नोटिस भिजवाए गए, लेकिन किसी ने भी बिल जमा न करवाया, जिस पर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकाम जारी किए हैं। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा बरामद होने वाले आला क्वालिटी के चावल मेटको राइस प्रोसेसिंग लिमिटेड की जानिब से ईरान फेयर 2012 में लगाया जाने वाला स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। वो कैसे बता रहे हैं हसन अली अपनी इस रिपोर्ट में। एक्सपो सेंटर में ईरान फेयर 2012 के मौके पर पाकिस्तान के सबसे ज्यादा बरामद होने वाले चावल मेटको फलक बासमती का स्टॉल भी लगाया गया है, जहां आला क्वालिटी के चावल की मुख्तलिफ इकसाम शहरियों के लिए रखी गई हैं। इनमें प्रीमियर, सुपर बासमती, एक्सट्रीम, ब्राउन राइस समेत दीगर इकसाम शामिल हैं। नुमाइश देखने के लिए आने वाले शहरियों की बड़ी तादाद ने मेटको राइस के स्टॉल का रुख किया और मेटको फलक बासमती के आला म्यार और मुख्तलिफ इकसाम को सराहा। शहरियों का कहना है कि मेटको फलक बासमती का आला म्यार ही उनकी कामयाबी की जमानत है। काफी पुरानी एक तो कंपनी है, काबिल एतमाद है, इसमें मार्केट में इसका काफी नाम है ये, और ये पहले भी हमने इस्तेमाल कर चुके हैं इनके चावल, बड़े अच्छे इनके रिजल्ट दिए इन चावलों ने। मेटको राइस प्रोसेसिंग लिमिटेड के एमडी जावेद अली गौरी का कहना है कि उनके चावल की मुख्तलिफ इकसाम इस वक्त दुनिया के 44 से ज्यादा ममालिक में बरामद की जा रही हैं। उनका कहना है कि मेटको राइस 1964 से अपने सार्फिन की खिदमत कर रहा है और अपने आला म्यार के बायस न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी सार्फिन की अव्वलीन तरजीह बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस और वी आर फर्स्ट ब्रांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया के कंपैरिजन में हमारे 44 प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हमारा चावल अवेलेबल है। स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न राइस प्लांट है, कंप्लीट ऑटोमेटिक, जिसमें कोई इंसान को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक नहीं है। मेटको राइस ने अपने आला म्यार के बायस जहां आलमी मंडी में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वहीं आज पाकिस्तान में भी सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ हसन अली, सिटी 42। शहर में मोटरसाइकिलों के बढ़ते हुए हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस ने स्कूलों के बच्चों के साथ मिलकर दो-रोजा आगाही और हिफाजती मुहिम शुरू कर दी। ट्रैफिक पुलिस ने स्कूलों के बच्चों के साथ शदीद तरीन गर्मी में मोटरसाइकिल सवारों को दौरान सफर हिफाजती इंतजाम और मोटरसाइकिल चलाने के सही तरीकाकार पर ब्रीफिंग दी और पम्फलेट तकसीम किए। मुंतजमीन ने शहरियों से अपील की कि वो सख्त गर्मी में भी हेलमेट का इस्तेमाल जारी रखें और ज्यादा पानी पिएं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर में 60% से ज्यादा हादसा मोटरसाइकिल सवारों की मामूली गलतियों की वजह से होते हैं और अगर वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगियां भी बचा सकते हैं। जू सफारी में काले हिरण के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश से शायकीन में खुशी की लहर दौड़ गई। रायवन में वाक़े जू सफारी इंतजामिया के मुताबिक जू सफारी में काले हिरण के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई है, जबकि इससे कबल भी चीतल हिरण के यहाँ 2 बच्चों और नील गाय के यहाँ 1 बच्चे की पैदाइश हुई है। इंतजामिया के मुताबिक जू सफारी में हिरणों की मजमूई तादाद 60 हो गई है। शायकीन ने भी जू सफारी में हिरणों के नए इजाफे को खुशाइंद करार दिया है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की अंडर सेक्रेटरी मिस कारा सोसन शाइन ने 7 रुकनी वफ्द के हमरा लाहौर के तारीखी मुकामात का दौरा किया और शहर में कयाम को अपने लिए एजाज का बाइस करार दिया। बादशाह कारा सोसन ने कनेट कॉलेज में मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा और तालिबात से खिताब भी किया। मिस कारा सोसन शाइन ने इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अमरीकी काउंसिल जनरल नैना मारिया फायर, डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट जेम्स टॉम मिलर, डायरेक्टर कल्चरल अफेयर लाहौर, काउंसिलेट कमेटी काइंस और काउंसिल खाने के दीगर अफराद के हमरा दहली गेट में वाक़े सुनहरी मस्जिद में जारी तामीराती काम का जायजा लिया। इस दौरान महकमा आसार कदीमा के कल्चरल स्पेशलिस्ट सालिब हुसैन ने वफ्द के अराकीन को सुनहरी मस्जिद की अहमियत से आगाह किया और वहां जारी अमरीकी ताउन से होने वाले तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। इसके बाद अमरीकी वफ्द ने मीनार पाकिस्तान देखा। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज करते हुए मिस कारा सोसन शाइन ने तहरीर किया कि उनके लिए एजाज की बात है कि वो इस कदर खूबसूरत शहर के तारीखी विरसे को देखने पहुंची हैं। अमरीकी वफ्द ने कला लाहौर का बैरूनी जायजा लिया, जबकि बादशाही मस्जिद का भी दौरा किया। बादशाह अमरीकी वफ्द कनेट कॉलेज पहुंचा, जहां मिस कारा शाइन ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात से खिताब करते हुए कहा कि अमरीकी हुकूमत को खुशी है कि पाकिस्तान की तारीख
तारीख में पहली मर्तबा सियासी हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल करने जा रही है। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत के फरोग का ख्वाहिशमंद है। इस दौरान उन्होंने तलबा की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाबात भी दिए। पाकिस्तान की सरहदी हदूद में अमरीकी ड्रोन हमलों के बारे में पूछे जाने वाले सवाल पर मिस कारा शाइन अपना जवाब गोल कर गईं। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। दरियाए रावी में आलूदा पानी डालने वाली 1274 फैक्ट्रियों के चालान करके उनकी फहरिस्त लाहौर हाईकोर्ट के ग्रीन बेंच में पेश कर दी गई। अदालत ने आलूदगी के खात्मे के लिए कमीशन बनाने और फंड फराहम करने की रिपोर्ट तलब करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि आलूदगी से पाक मुआशरे की तश्कील के लिए हर इदारे को अपना किरदार अदा करना होगा। अदालत किसी सूरत कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल ग्रीन बेंच के रूबरू दरियाए रावी में आलूदा पानी फेंकने जाने के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत हुई। अदालत में एडवोकेट जनरल पंजाब इश्तरोसाफ अली पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमत 7 रुकनी कमीशन बनाने पर गौर कर रही है, जिसमें सरकारी अफसरान के अलावा फैक्ट्री मालिकान और माहिरीन माहौलियात शामिल होंगे। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए कानून साजी भी की जाएगी। अदालत ने महकमे माहौलियात की जानिब से दरियाए रावी में आलूदगी का बायस बनने वाली 1742 फैक्ट्रियों की फहरिस्त पेश की गई। अदालत को बताया गया कि आलूदगी का बायस बनने वाली तमाम फैक्ट्रियों के चालान कर दिए गए हैं, पर मुकर्ररा मुद्दत में आलूदगी के खात्मे के हवाले से इन फैक्ट्री मालिकान ने ठोस इकदाम न किए तो मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 8 जून तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर आलूदगी के खात्मे के लिए किए गए इकदाम के हवाले से रिपोर्ट तलब करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि आलूदगी से पाक मुआशरे के लिए हर इदारे को अपना किरदार अदा करना होगा। अदालत इस मामले पर किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। फन अफसाना निगारी में नई जिहतें मुतारिफ कराने वाले बेपाक अफसाना निगार सादत हसन मंटो की 100वीं सालगिरह पर इनके फन शख्सियत के हवाले से सैफमा में तकरीब का इनेकाद किया गया। साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन के एजोरिया में मुनाकिदा तकरीब में नुज़रत मंटो और फरहत मंटो ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि पैनल में ज़ियाउल हसन और अमजद अली शाकिर मौजूद थे, जिन्होंने सादत हसन मंटो की अफसाना निगारी और जिंदगी के हवाले से हॉल में मौजूद अफराद को आगाह किया। इस मौके पर शुरका का कहना था कि सादत हसन मंटो अपने अफसानों के जरिए मुआशरे में पाई जाने वाली बुराइयों की निशानदही की। बेबाक तहरीरों के बायस मंटो को हम असर नाकदीन की जानिब से सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया गया। अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर सिटी अदालत में। लेडी कांस्टेबल की जायदाद हथियाने के इल्जाम में पुलिस एहलकार की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा कि पुलिस अगर अपनी यतीम साथी को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती तो लोगों को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद साकिब की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी राना शुजात अली अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि मुल्जिम के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज हैं, मेरिट पर तफ्तीश के लिए वक्त दिया जाए। लेडी कांस्टेबल नाहिद कैसर की जानिब से अदालत को बताया कि अब के वालिद के इंतकाल के बाद इसके खामन पुलिस एहलकार मोहम्मद साकिब ने जाली दस्तावेजात के जरिए इसकी जायदाद अपने नाम करा ली और दूसरी शादी करके दरखास्त गुजार को तलाक दे दी, जिस पर इसके खिलाफ थाना इस्लामपुरा में मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्जिम के खिलाफ मजीद भी कई मुकदमात दर्ज हैं। कांस्टेबल साकिब के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि मुल्जिम पर फ्रॉड का इल्जाम गलत है। मुल्जिम के वकील के दलाइल के दौरान लेडी कांस्टेबल कमरे अदालत में ज़ारों की तार रोती रही। अदालत ने दरखास्त गुजार लेडी कांस्टेबल के बारे में कहा कि वो रोकर अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है, जिस पर लेडी कांस्टेबल रोते हुए कमरे अदालत से बाहर जाने लगी तो अदालत के हुक्म पर दोबारा वापस आ गई। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पुलिस दूसरे लोगों को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इसके महकमे की यतीम कांस्टेबल इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर लगा रही है। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद जमानत खारिज कर दी। मोहब्बत की शादी करके इंग्लैंड में जा बसने वाले जोड़े के इंग्लैंड बुलाने की शर्त पूरी न करने पर भाइयों ने बहन की तरफ से तलाक का दावा दायर कर दिया। अदालती नोटिस मिलने पर लड़के का वालिद निकाहनामा और तस्वीर उठाए अदालत पहुंच गया। शरकपुर के सायरा ने साजिद से मोहब्बत की शादी की और इंग्लैंड चली गई। उसके भाइयों ने फैमिली सिविल जज इमरान असद की अदालत में तलाक का दावा दायर कर दिया। अदालती नोटिस पर लड़के साजिद के बाप नौशेर खान अदालत में पेश हुए और अपने वकील आरिफ अवान एडवोकेट के जरिए अदालत को बताया कि तलाक का दावा झूठा है। सायरा इंग्लैंड में अपने शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही है और उसके भाइयों ने जाली दस्तखत करके तलाक का दावा दायर किया है।
जवाब में कहा गया कि साजिद ने अपने सालों को इंग्लैंड बुलाने से इनकार किया था। इसी रंजिश पर दावा दायर किया गया है। अदालत को मजीद बताया गया कि शादी शरफपुर में हुई थी तो दावा भी मुतल्लिका अदालत में दायर होना चाहिए था। जहां मियां बीवी रहते हैं, तलाक का दावा भी वहीं दायर किया जाता है। वकील ने अदालत को बताया कि साहिरा ने दावा दायर नहीं किया, ताहम दावे को झूठा करार देकर खारिज किया जाए। अदालत ने फरीकैन के वकला को अगले हफ्ते बहस के लिए तलब कर लिया। तारीख अदालत ने ऑपरेशन ठीक न करने और मरीजा की आंख खराब करने के दावे पर दोनों फरीकैन के वकला को मसाहलत के लिए 15 जून को तलब कर लिया है। तारीख अदालत में सांदा की खातून रेहाना हैदर ने सांदा के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नदीम बट के खिलाफ 2.5 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। इसका मौक़िफ़ है कि उसने अपनी आंख का ऑपरेशन डॉक्टर नदीम बट से कराया। ऑपरेशन के बाद टांके काटने से आंख के अंदर धागे रह गए, जिससे आंख में सोजिश हो गई। डॉक्टर को बताया गया तो उसने दवाई देकर बात को टाल दिया, लेकिन ज्यादा तकलीफ होने पर किसी और डॉक्टर से राब्ता किया गया तो उसने बताया कि धागे आंख में रहने की वजह से तकलीफ हो रही है। बाद में उसे दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा। अदालत से इस्तदा है कि उसे डॉक्टर से हर्जाना दिलवाया जाए। दावे पर अदालत ने फरीकैन को तलब किया। जुमे के रोज दौरान समाअत डॉक्टर नदीम बट की जानिब से जवाब दाखिल करा दिया गया, जिस पर अदालत ने दोनों फरीकैन को मसालहत के लिए 15 जून को तलब कर लिया है। तालीमी सरगर्मी पर एक नजर सिटी तालीम में। मौसम गर्मा की तासीरात के साथ ही दी नॉलेज स्कूल में समर गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने खूब मजे उड़ाए। रायवन रोड प्रवास के दी नॉलेज स्कूल में होने वाली तकरीब में प्रिंसिपल आबिद हाशमी, कोऑर्डिनेटर अम्मार सलीम समेत तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तलबा और तालिबात ने स्विमिंग पूल में खूब मजे उड़ाए। तकरीब में नौमुंतखब हेड बॉय और हेड गर्ल समेत क्लास प्रीफेक्ट की खल्फबरदारी का एहतमाम भी किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने स्कूल में डिसिप्लिन कायम रखने का अहद किया। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। क्या हो रहा है खेल के मैदान में, आप जान सकेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। सरप्राइज क्रिकेट लीग के मैच में पंजाब क्लब ने राइजिंग स्टार क्लब को 98 रन से शिकस्त दे दी। टाउनशिप क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में पंजाब क्लब ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 231 रन बनाए। अवैस तारिक 61, नोमान बेग 58 और अब्बैर अहमद 31 रन बनाकर नुमाया रहे। राइजिंग स्टार की जानिब से शान सादिक और शफीक अहमद ने 3-3 जबकि अब्दुल मुकीद ने 2 विकेटें हासिल की। मतलूबा हदफ के ताक़ुब में राइजिंग स्टार की टीम 133 रन पर पवेलियन लौट गई। हसन इलियास 41, अरसलान अहमद 26 और आमिर रशीद ने 24 रन बनाए। फातेह टीम की जानिब से हाफिज अदील ने 2 विकेटें हासिल की। रॉयल पाम कंट्री क्लब में वर्ल्ड ब्रिज टूर्नामेंट के मुकाबले शुरू हो गए हैं। पहले रोज सीनियर खिलाड़ियों ने तजुर्बे की बुनियाद पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। रॉयल पाम में होने वाले वर्ल्ड ब्रिज टूर्नामेंट के लाहौर जोन से 82 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, जिनमें 5 खवातीन खिलाड़ी भी शामिल हैं। टूर्नामेंट के पहले रोज सीनियर खिलाड़ियों ने उम्दा कारकर्दगी पेश की, जबकि कम तजुर्बाकार खिलाड़ियों ने भी कुछ सीट्स में सीनियर्स को भरपूर टफ टाइम दिया। टूर्नामेंट के नताइज वर्ल्ड ब्रिज फेडरेशन की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, जिनका दुनिया के मुख्तलिफ खिलाड़ियों के नताइज से मुआवजा किया जाएगा। खिलाड़ियों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी पाकिस्तानी खिलाड़ी टॉप 10 फहरिस्त में जगह बनाने की सलाहियत रखते हैं। लाहौर जोन के हतमी मुकाबलों का ऐलान हफ्ते की शाम को किया जाएगा। तीसरी नेशनल टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में गुजरात और मुजफ्फरगढ़ ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर और भावलपुर का सफर सेमीफाइनल में खत्म हो गया। जीसीयू के क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए पहले सेमीफाइनल में लाहौर ने गुजरात के खिलाफ मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 167 रन बनाए। मोहम्मद इकबाल 42 और मोहम्मद हफीज 28 रन के बाद नुमाया बैट्समैन रहे। औरंगजेब ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में गुजरात ने मतलूबा हदफ 88वें ओवर में 5 विकेटों पर पूरा करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ओल्ड कैंपस में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में मुजफ्फरगढ़ ने बहावलपुर को 6 विकेटों से शिकस्त दी। बहावलपुर की टीम पहले खेलते हुए 93 रन पर आउट हो गई। जवाब में मुजफ्फरगढ़ ने मतलूबा हदफ 18वें ओवर में 4 विकेटों पर पूरा करके फाइनल तक रसाई हासिल की। चैंपियनशिप का फाइनल हफ्ते के रोज LCCA क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। कारोबारी उतार चढ़ाव से मुतालिक कुछ खबरें शामिल की जाएंगी सिटी बिजनेस में। और अब एक नजर गैर मुल्की करेंसी रेट पर।
42 के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशरियात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।